Hello, hi, namaste, welcome. I'm Preeti Sachdeva from Parenting with Preeti. So, as you all know, that I have started my joyful journey, Your Path to Happiness podcast talk show. I have today a very beautiful guest, a very sweet friend of mine, Mrs. Jyoti Singh. So, thank you so much, Jyoti, for coming and inviting and accepting my invite. It's really pleasure, Preeti ji, and I was actually truly inspired the way you are uh, connecting with all the expert and have started with this series. So I think it's truly commendable, and the way you are helping us to learn through your platform also. So I think the journey of learning should be ongoing, and it's really glad to have you as a friend. And I'm sure together this is going to have a lot of impact in the society. So it's truly a blessing to be here on your podcast today. Thank you so much for these beautiful words, and it has already inspired me also and motivated me a lot. Thank you so much. So, before we start with this, I would like to introduce Jyoti ji. Jyoti Singh ji is a proud mom to a 7 years old. She brings a personal touch to her work as a certified parent coach, student wellness coach, and certified storyteller. She also holds a master degree in human relations. She believes that the first step towards helping the children begin with parents' education. Jyoti ji is committed to making a positive impact on the lives of those she serves. Her passion for empowering parents and students had led her to establish Enlightened Parenting Hub and Inspiring Lives by Jyoti Singh. Wow, what an inspiring profile you have. So, thank you once again Thank you. for coming. Thank you so much, Prithvi. So, moving forward, let me introduce you to the topic. As she is a lady who has a mission of inspiring the lives, so she has taken the topic for self healing makes you a better parent. So, it will be for the parents also, and overall, it will be for everyone. सो जहाँ सेल्फ हीलिंग की बात आती है ज्योति जी, मेरे को ये बताइए, एक तो सेल्फ हीलिंग होती क्या है और ये क्यों जरूरी है पेरेंट्स के लिए कि वो अपने बच्चों को सपोर्ट करने से पहले अपनी खुद की सेल्फ हीलिंग करें। एब्सोल्युटली दिस इज अ वंडरफुल क्वेश्चन, प्रीति जी। आई थिंक अगर जब हम बात करते हैं सेल्फ हीलिंग की, तो कहीं ना कहीं हर एक इंसान के पीछे ना कुछ थोड़ा बहुत पेन होता है, कई बार स्ट्रेस होता है, ट्रॉमा होता है। बट द थिंग इज वी आर कमिंग फ्रॉम द जनरेशन जहाँ पे ये सब बातें होती नहीं थी। वी यूज टू सप्रेस, हम ओपनली से डिस्कस ही नहीं करते थे ना पेरेंट्स के साथ। But now we are blessed with this technology, and as we all are learning and evolving, people have started realizing that healing is must in our journey. अगर मैं बात करूँ पेरेंट्स की, तो आई थिंक वी पेरेंट्स आर जस्ट लाइक अ वेसल। अगर मिट्टी का घड़ा अगर मैं बोलूँ, तो अगर हम उनमें पेन, स्ट्रेस या फिर कुछ भी हमारे ट्रॉमास डालते जाएंगे, वो घड़े में छोटा सा क्रैक आ जाएगा एंड इट विल स्टार्ट लीकिंग. And just like as a leaking vessel cannot hold on the water, so similarly we parents also cannot nurture our kids well. अगर हम में ही कुछ ना कुछ इतने सारे ट्रॉमास हैं, नेगेटिविटी है, डू यू थिंक हमारे पास कुछ बचेगा हमारे बच्चों को देने के लिए? So that's where I also realized that somewhere down the line, healing is so much essential, and it really transform your life, not just your parenting, but जो आपके relationships है, हर एक segment में it plays a very vital role. So that's how I realized. In fact, I have also gone through the healing process, though not so much of big, but छोटी छोटी चीजें भी ना pile up होके it's get into your nerves, it gets into your emotions, सब कुछ है। दो हमें लगता है कि चलो ये बहुत छोटी सी बात है, but it is very much essential that हम उसको overcome करें, उसे heal करें। एंड आजकल के टाइम में अगर आप देखोगे तो देर आर सो मेनी ऑफ एडल्ट। कल परसों ही मैंने एक बहुत अच्छा कोट देखा था जिसमें ये था कि देर लॉट ऑफ एडल्ट्स इन द वर्ल्ड, बट द एंटायर चाइल्डहुड या फिर अगर हम उनका पास्ट देखेंगे तो इट वाज फुल ऑफ ट्रॉमास एंड दे आर जस्ट अ वुंडेड सोल। बट हम प्रिटेंड कर रहे हैं दैट यस वी आर वेरी हैप्पी। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम हमारा जो इनर चाइल्ड है या हमारी जो सेल्फ हीलिंग है, we take care of that also. जैसे हम हमेशा प्रीच करते हैं दैट पेरेंटिंग में प्रैक्टिस सेल्फ केयर, बट
आई वुड ऑल्सो लाइक टू एड ऑन दैट हीलिंग भी बहुत जरूरी है। सेल्फ केयर तो हम जब भी कर पाएंगे जब हम हील हो गए अंदर से। So that's why I have chosen this topic, and I thought let's share some of the insights with you via your platform. थैंक यू सो मच फॉर ब्यूटिफुली एक्सप्लेनिंग दिस कि सेल्फ हीलिंग का मतलब, सेल्फ लव और सेल्फ केयर का मतलब होता है पहले अपने आप को सेल्फ हील करना। एंड Good, good. एग्जाम्पल यू हैव गिवन कि एक मिट्टी के घड़े में हम जैसा पानी डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, और वो कहीं ना कहीं से वो क्रैक होगा ही, बट जितना डालो उतना ही जितना उसकी कैपेसिटी हो, और फिर आप उसको पोर Capacity. कर दो, ग्लासेस में पोर कर दो या उसको प्लांट्स में वाटर कर दो। द सेम वे आप अपने अंदर भी उतना ही रखो जितनी आपकी कैपेसिटी हो, और उसके बाद फिर Capacity. उसको हीलिंग में ले आओ। अगर आपका अंदर इतना स्ट्रेस या एंजाइटी या रिग्रेट्स कुछ इस चीज के हैं, तो उस चीज को आप थोड़ा हीलिंग के थ्रू उसको कम करते जाइए, एंड अपना हैप्पीनेस को बढ़ाते जाइए, अपने उस घड़े को हैप्पीनेस से भरिए, so that you can pour from there also. So very beautifully you have explained, and the great startup you have given to this talk. थैंक यू सो मच। एंड यू नो द हीलिंग, जब आप हीलिंग वाले प्रोसेस में चले जाते हो ना, यू स्टार्टेड सीइंग द वर्ल्ड थ्रू अ वेरी डिफरेंट लेंस। अब क्या होता है, हम हमारे अंदर इतना सारा ट्रॉमा है, हम हर चीज को ना बहुत जल्दी जजमेंटली लेने लग जाते हैं, यू नो ऐसे होगा इसलिए ऐसे ही हो रहा। बट जब आप ये हीलिंग प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आप गाइड हो जाते हो, यू स्टार्ट सीइंग पॉजिटिविटी इन ईच ऑफ द स्टेप। अगर मेरा कुछ काम भी नहीं हो रहा है, इसी मे बी देयर इज समथिंग बेटर वेटिंग फॉर मी। तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है हमारे लाइफ को। एंड आई थिंक पेरेंट्स के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है दैट दे शेट डाउन देयर ऑल इमोशनल बैगेज, ट्रॉमास, एवरीथिंग। एंड दिस पेरेंटिंग इज अ वंडरफुल जर्नी, सो यू नो जस्ट एंजॉय दिस जर्नी। एंड यू नो वो वंस वी आर हील्ड, आई थिंक वी आर गोइंग टू रेज जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उनको भी हम बहुत बेहतर तरीके से रेज कर सकते हैं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। ये आपने एक बहुत ही सेंसिटिव चीज को टच किया है कि पेरेंट्स, आप पेरेंट्स भी जैसे वर्किंग में होते हैं या अपना मतलब हाउस वाइफ्स भी होती हैं, वो इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज में घिरी हुई होती है कि उनको ये नहीं पता होता कि कहाँ उनके अंदर भी डिप्रेशन या एंजाइटी पाइलअप होता चला जा रहा है। एंड एब्सोल्यूट। वंस द अवेयरनेस यू नीड इज कि अवेयरनेस आप लेके उस चीज को कैसे हील करोगे, बाय स्टेप थिंग्स, द वे शी हैज सेड कि हाँ आपको स्टेप बाय स्टेप चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा कि आप उसकी हीलिंग पहले करो एंड देन पोर आउट फ्रॉम दैट, अपने उस पॉट से आप उसको, इमोशनल पॉट से आप उसको हीलिंग करके आप जो है अपने बच्चों को भी पोर आउट कर सकते हैं। कर I this सकते हैं। reminds me of one video. I won't take the name of that person. एक पेरेंटिंग के ऊपर ही मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें क्या था कि ग्रैंड मदर थी, शी वॉज हैविंग अ ओके। पोटली of baggage of something unresolved things. She took that and she gave it to her बहू, अपने डॉटर ओके। इन लॉ को दिया। तो डॉटर इन लॉ ने देखा, और वो भी थोड़ा मतलब उसका भी एक्सप्रेशन ऐसा था कि हाँ अच्छा अब ये मुझे लेना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा। एंड देन शी वॉज अबाउट जस्ट गिव इट टू हर चाइल्ड, और फिर उसने अपने पास ही समेट कर रखी कि नहीं मुझे ये नहीं ओके। हाँ, तो लेना। दैट जनरेशनल साइकिल अगर हम बात करें तो ट्रॉमा का, यू नो वी आर पासिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। बट कहीं ना कहीं हमें वो साइकिल तोड़ना बहुत जरूरी है, स्पेशली अदरवाइज तो ये ऑन गोइंग प्रोसेस विल डेफिनेटली यू नो क्रिएट लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस इन लाइफ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मतलब कुछ भी कह लीजिए, आप अपने ग्रैंडफादर या ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम का कोई डेप्थ है या कोई एंजाइटी हाँ। है, कोई बहुत सी चीजें होती हैं जो पहले के टाइम पे होती थी, बट अब के टाइम पे जो है वो देखा जाए तो अगर न्यूक्लियर फैमिलीज की बात करें, द पीपल हैव शिफ्टेड टू न्यूक्लियर फैमिलीज, तो वो एंजाइटी स्ट्रेस उनके ऊपर भी उस तरीके से आ जाता है कि हाँ आपको अपने पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी और इसका वो ये सब देखने के लिए भी दे टेक द स्ट्रेस ऑफ इट। उनको ये मतलब एक जॉय ऑफ गिविंग नहीं लग पाता, फिर क्यों? क्योंकि उनके माइंड में स्ट्रेस। एब्सोल्युटली। या। इसी के कंटिन्यूएशन में मेरे को एक चीज आपसे ये पूछनी है कि हाउ डज अनरिजॉल्व ट्रॉमा, जिस तरीके की हम अभी बात कर रहे हैं, और इमोशनल यस। बैगेज इम्पैक्ट्स द पेरेंटिंग स्टाइल और अ चाइल्ड्स बिहेवियर। या। तो आई जस्ट शेयर विद फ्यू ऑफ द एग्जांपल्स, अगर हम इसमें तो आई थिंक दैट विल एबल टू हम इसको बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो जब हम बात करते हैं अगर पेरेंट के जो ट्रॉमास होते हैं या इमोशनल बैगेजेस होते हैं, अगर वो होल्ड ऑन करते करते जाते हैं एंड वंस दे बिकम ए पेरेंट, वो उनके अंदर कहीं ना कहीं है। बट नाउ अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर पेरेंट का काफी ज्यादा उनके जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स के जो पेरेंट्स है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे या बहुत ही ज्यादा अथॉरिटेरियन थे,
तो पेरेंट की जो अपब्रिंगिंग थी, जो चाइल्डहुड था, उसे कहीं कभी बोलने का मौका नहीं दिया गया, वो हमेशा चुप था। तो देयर कुड बी टू केस, इधर द पेरेंट विल कंटिन्यू विद द सेम साइकिल, वो भी बहुत ज्यादा बच्चों के लिए ओवर प्रोटेक्टिव हो जाएगा, उन्हें गिव द सेम एनवायरनमेंट कि नो यू आर नॉट सपोज टू स्पीक एनीथिंग, बहुत ही कंजर्वेटिव एंड अथॉरिटेटिव। और वो बहुत ही ज्यादा परमिसिव हो जाएगा कि जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे नहीं दिया, नाउ लेट मी गिव इट टू माई चिल्ड्रन, एक्सेसिव फ्रीडम, यू नो नॉट गेटिंग इनटू कॉन्फ्लिक्ट, इट्स ओके, यू डू वट एवर यू लाइक। सो दोनों तरह से ना बहुत ही ज्यादा डिसबैलेंस रहेगा, एंड इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द चाइल्ड ऑल्सो। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट जो हम पुराना ट्रॉमाज लेके आ रहे हैं। आई हैव सीन सो मेनी एडल्ट, सो मेनी केसेस प्रीति जी, जहाँ पे एट द एज ऑफ 45-50 दे कन्फेस दैट देयर पेरेंटिंग वाज सो मच इनटू पेन, एंड वो इतना ज्यादा स्ट्रेसफुल थे दैट नाउ ऑल्सो आज भी वो उन्होंने होल्ड ऑन करके रखा है। नाउ इमेजिन अ चाइल्ड फ्रॉम द चाइल्डहुड टिल आई थिंक ऑलमोस्ट जब वो अपने सीनियर जो ओल्ड एज में जाने वाला है, तब तक उसने वो ट्रॉमा होल्ड करके रखे हैं। तो एज यू आर ऑल्सो इनटू पेरेंटिंग, अब हम इसलिए कहते हैं कि जो इनिशियल इयर्स है, जो फाउंडेशनल इयर्स है, मेक श्योर दैट हमारे वर्ड्स, हमारे एक्शंस कैसे इम्पैक्ट करते हैं। And when you see such life cases, and it's really disheartening to see that at the age of 40, 45, in fact 60s में भी regret रहता है that my parents had forced me into particular profession. आई डोंट वांट टू बी अ डॉक्टर और एन इंजीनियर, मेरा ये पैशन था। तो ये भी कहीं ना कहीं एक ट्रॉमा पेरेंट कैरी करता जाता है, एंड देन दे फील दैट जो मुझे नहीं मिला, जो प्लेटफॉर्म या अपॉर्चुनिटी, लेट मी गिव इट टू माय चाइल्ड। बट इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है, पेरेंट्स फॉरगेट टू ड्रॉ दैट बाउंड्रीज कि यस, हमें देनी है बच्चों को फ्रीडम, हम ये नहीं कह रहे, बट देयर हैज टू बी सर्टेन बाउंड्रीज, देयर हैज टू बी सर्टेन रूल्स, अदरवाइज किड्स विल गेट मिसगाइडेड बाय their friend सर्कल या बहुत सारे फैक्टर्स है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट पेरेंट्स टू अंडरस्टैंड दैट जो पुराना जो हमारा बैगेज है, उसे हम वहीं छोड़े, लेट्स हील आवरसेल्फ एंड लेट्स मूव ऑन फर्दर एंड लेट्स बी माइंडफुल, इट्स ओके टू टॉक। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है हमारे सोसाइटी में, वी आर नॉट अलाउड टू डिस्कस सच थिंग्स, बहुत जल्दी लेबल कर देंगे, इधर स्टिग्मा है दैट इधर ये मेंटली, इमोशनली ही इज नॉट स्ट्रॉन्ग या ही इज नॉट फाइन, अभी भी पुरानी बातें पकड़ के रखा है। तो इट इज वेरी बैड थिंग, कि सोसाइटी हमेशा जज करने के लिए रेडी रहती है। तो let's create a safe environment, safe space wherein people can at least vent out their feelings, their emotions, that let's not judge them. And जहाँ पे भी अगर उन्हें जरूरत लग रही है कि हाँ प्रोफेशनल्स की हेल्प लेनी है, तो लेट्स सीक द हेल्प ऑफ द प्रोफेशनल्स, बिकॉज जब भी हम बात करते हैं कि हमें काउंसलर्स या हीलर्स के पास जाना है, तो भी लाइक फैमिली में भी बहुत हो जाता है कि बड़ा आया हीलर्स के पास, ऐसे तो कोई बात ही नहीं है। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट एवरी पर्सन इज डिफरेंट, सबकी इमोशनल कैपेसिटी, इमोशनल रेजिलियंस बहुत डिफरेंट है। तो लेट अस अंडरस्टैंड एंड सपोर्ट ईच अदर। अगर हमें भी लग रहा है कि फैमिली में ये समथिंग इज रॉन्ग, मे बी इट कुड बी विद योर स्पाउस ऑल्सो या पेरेंट्स है, तो लेट्स डिस्कस इट, बिकॉज आई थिंक दैट्स द ओनली वे जहाँ से हम थोड़ा सा ट्रांजिशन और ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं पॉजिटिवली। तो बहुत ज्यादा जरूरी है दैट पेरेंट्स के जो ट्रॉमाज हैं वो हमेशा बच्चों पे इम्पैक्ट होते ही होते हैं। नॉट, इट माइट हैपन दैट छोटे छोटे ट्रॉमाज है तो वो छोटे छोटे इम्पैक्ट करेंगे, देर आर सर्टेन थिंग्स विच आर वेरी बिग एंड वेरी डिस्टर्बिंग, so they will have another impact. For example, if a child have seen her father very abusive, बहुत ही ज्यादा वो है, तो वो वहीं से पिक करेगा, एंड देन ही माइट सी, ही माइट आल्सो डू द सेम थिंग विद हिज फैमिली और फिर हिज स्पाउस आल्सो। तो बहुत सी चीजें हैं, ऑल द डॉट्स आर इंटरकनेक्टेड, ओनली द थिंग इज वी हैव टू अंडरस्टैंड जो पुराना है वी कैन नॉट चेंज दैट, बट यस वी कैन एब्सोल्युटली चेंज आवर फ्यूचर एंड प्रेजेंट। So let's work on it. So sweet of you, and explaining with the true examples of the life, and the two kind of parenting styles we have mentioned, या तो पेरेंट डोमिनेंट होगा अथॉरिटेटिव वाले Yeah, उसमें, या वो ज्यादा ही परमिसिव हो जाएगा कि permissive हो ज्यादा जाएगा, कि छूट ही दे दी पूरी तरीके से। छुट्टी वाई दे देगा। बिकॉज उनके खुद के टाइम पे उनको इतनी छूट नहीं मिली। हम लोगों ने भी आज, जैसे मैं अगर ओपनली इस चीज की बात करूं, हम लोगों ने अपनी फैमिलीज में काफी इसमें देखा होगा, रिलेशंस में भी देखा कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहाँ पे पेरेंट्स हो या ग्रैंड पेरेंट्स हो वो रिजिड हो जाते हैं, ऑर्थोडॉक्स, हमारे एब्सोल्युटली। घर में ये चलता है तो चलता है। पर टाइम के साथ वो चेंज नहीं किया। आज का टाइम डिजिटल वर्ल्ड में जा चुका है, सब कुछ हो गया,
पहले के टाइम पे तो इट वाज लाइक अ प्योर नेचर वाला टाइम. इफ आई टॉक अबाउट माई आप सेल्फ, व्हेन माय ग्रैंडफादर यूज्ड टू टेल मी द थिंग्स कि आप तो आज यहाँ आसपास घर देख रहे हो ना बेटा, जब हम लोग छोटे थे तो यहाँ खेत ही खेत थे. तो खेती वो खेत चीज होते एक अच्छी वो थी कि हाँ, आपको एक नेचर से कनेक्ट करने वाली चीजें वो नेचर। सिखाई जाती थी. बट व्हेन आई हैव सीन द केसेस, दिस काइंड ऑफ केसेस व्हेन इट कम्स टू मी, कि हमारे ग्रैंडफादर तो हमको ये अलाउ नहीं करते थे, ये अपनी कपड़े पहनने, वहाँ बेटी को बाहर नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना. और आज के टाइम पे आप देखो कि द गर्ल्स एंड द बॉयज, इफ आई टॉक अबाउट बोथ ऑफ देम, दे बोथ आर इक्वली गिवन या द इक्वल या इक्वल स्टेटस. आप किरण बेदी जी को देखिए, एब्सोल्युटली द वे। राइट. आप कल्पना चावला जी को देखिए. जब ऐसी ऐसी विमेन जो है आगे जाके इतना सब कुछ वो अचीव कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट वी कैन गिव दैट इंस्पिरेशन टू आवर चिल्ड्रन, राइट. आई एम नॉट सेइंग कि हाँ हमें अपने बट कहीं ना पेरेंट्स कहीं का, जस्ट बिकॉज ऑफ सोसाइटी सोसाइटी का इंटरफेरेंस या कुछ ऐसा, आपका कहने का मतलब है कि सोसाइटल फैक्टर्स ऐसे हो जाते. एंड आई थिंक इट विल टेक टाइम धीरे धीरे। राइट, 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 एब्सोल्युटली, यू आर सेइंग दैट वेरी करेक्टली, दैट. और वो चीज फिर धीरे 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 जाके अब ये चीज के लिए सिर्फ अवेयरनेस देनी है. वी आर नॉट सेइंग कि हाँ पेरेंटिंग करेक्ट। सीखो, ये पेरेंटिंग तो सभी को हाँ, आती है. आपने सबको अगर पता है। इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि हाँ हमें बेबी वो कर मतलब चाहिए, तो यू ऑलरेडी नो कि हाँ पेरेंटिंग में ये चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे. तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, अपना बैक ट्रॉमा कैसे छोड़ना है, और आगे के फ्यूचर को कैसे अच्छे फ्यूचर को अट्रैक्ट करना है. करेक्ट। First for yourself, then for your family. That is the simple thing only we are requesting. The all मतलब the whole society के आप इस चीज के लिए सपोर्ट करो. So very करेक्ट। beautifully you have given the examples of the, जैसे हम करियर की बात कर रहे थे कि पहले के टाइम पे देखा जाए तो डॉक्टर्स और इंजीनियर, ज्यादातर यही दो करियर जो है उस टाइम पे वो बोला जाता था कि बेटा आपको तो करेक्ट। डॉक्टर ही बनना है, बेटा आपको तो इंजीनियरिंग लाइन में ही जाना है. अब बच्चे का मन करेगा आर्ट एंड क्राफ्ट का, या उसका मन करेगा मैं डांस में कुछ आगे करूँ, तो उसकी हिम्मत ही नहीं होती थी बोलने की. And once they हिम्मत have नहीं है। given that 25, 30 years of experience of the time of their life in engineering, फिर उनको पता चलता है यार ये तो मेरी फील्ड ही नहीं. Absolutely. And that is so painful at the age of 40, 45, you feel we all can witness that there must so much of shift, जो लोग engineering background से they are getting into coaching background. अगर मैं मेरी भी बात करूं, मुझे भी नहीं awareness थी that I would, somewhere down the line will be a coach. But yes, as we moved on, हमें path clarity आती गई, we have adapted. But yes, there are so many of people who are changing the profession आगे जाके because वो सच में उन्हें करना ही नहीं था, just out of the pressure of the parent they have chosen this, and now they are following their passion and earning much better than the previous one. तो Right. वही है, हमें थोड़ा सा सपोर्ट करना है एंड लेट्स अंडरस्टैंड आवर किड्स नीड्स आल्सो. लेट्स गो फॉर द काउंसलिंग बिकॉज आज भी काफी पेरेंट्स काउंसलर्स के पास जाने के लिए बहुत ज्यादा झिझकते हैं. दे आर रेडी टू इन्वेस्ट 5 to 10 lakhs इन दी कॉलेजेस एंड ऑल, बट एक काउंसलर की फीस देने के लिए आज भी बहुत ज्यादा हेजिटेशन है. तो आई थिंक लेट्स सपोर्ट आवर किड, लेट्स सी सच में अगर उसे करना भी है कि नहीं, उसमें उतना पोटेंशियल है कि नहीं. तो बहुत सारी चीजें हैं जिन पे हमें वर्क करनी है. एब्सोल्युटली. अब जैसे आपने ये बात करी कि काउंसलर्स के पास पेरेंट्स को जाना चाहिए, तो लेट्स टॉक अबाउट कि ऐसे ही मतलब यहाँ ओपन डिस्कशन है उस चीज का भी कर सकते हैं कि पेरेंट्स को अगर हीलिंग जर्नी में गाइड करना हो, तो क्या वो स्टेप्स ले सकते हैं कि वो अपनी हीलिंग स्टेप बाय स्टेप इनिशियल स्टेज पे कैसे स्टार्ट करें. ओके. तो सबसे पहले वंस यू नो दैट यस आई वांट टू हील माय पास्ट ट्रॉमा या जो भी कुछ मेरा पेन है मुझे से पीछे छुड़ाना है, आई जस्ट वांट टू रीस्टार्ट माय लाइफ. सबसे पहले जरूरी है वो है एक्सेप्टेंस. पहले आप एक्सेप्ट कीजिए बिकॉज देर आर सो मेनी पीपल हु आर गोइंग टू द हीलर बट उनको वो एक्सेप्टेंस ही नहीं है कि नहीं मेरे साथ ये वाले इश्यूज है इमोशंस के. तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप एक एक्सेप्टेंस रखिए कि यस मुझे इस चीज से हील करना है, या आई हैव दीज इश्यूज, या आई हैव दिस पेन एंड नाउ नेक्स्ट व्हाट आई हैव टू डू. तो फर्स्ट स्टेप इज एक्सेप्टेंस. सेकेंड स्टेप इज वी हैव टू सीक प्रोफेशनल्स बिकॉज अगर हम सेल्फ स्टडी करके यूट्यूब पे वीडियोस देख के फिर गो इनटू दिस हीलिंग प्रोसेस एंड ऑल, देयर लॉट मेनी थिंग्स आर अवेलेबल ऑनलाइन. बट अगर आप किसी मेंटोर या एक्सपर्ट्स के अंडर इफ यू गेट हील, you can either go to the therapist, counselors. There are a lot of counselors, and these days there are a lot of healers also who are available online, to help you to get rid of. A lot of healing workshops are also going on. Inner child healing जैसे मैंने भी किया था,
तो तब मुझे पता लगा कि ओके, बचपन का मैंने ये चीज अभी भी होल्ड ऑन कर रखी है, एंड आई नीड टू रिलीज इट, आई नीड टू फॉरगिव, जो पुराना जो मैंने होल्ड ऑन, हमें पता नहीं होता बट डीप डाउन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ना चीजें बहुत सारी इकट्ठी हुई रहती है. So it is very important, go for the professional help, seek counselors, experts or the healers. And after that, what you have to do is you have to practice self care. तो जैसे हम सेल्फ केयर की बात करते हैं, यू हैव टू सेट द बाउंड्रीज, एक वो रेखा बनानी पड़ती है आपको कि यस, दिस इज माय एरिया, ऐसा नहीं कि हर कोई आ गया, अंदर घुस गया, या वो people should know that yes, these things will not be taken, अगर आपसे कोई बात भी कर रहा है, हंसी मजाक भी कर रहा है, there has to be certain boundaries. तो वो बाउंड्रीज आपको ड्रॉ करनी है. उसके बाद आपको जो ग्राउंडिंग टेक्निक्स विच विल बी गाइडेड बाय योर प्रोफेशनल्स, हीलर या फिर जो एक्सपर्ट्स हैं, वो जो ग्राउंडिंग टेक्निक्स है आप उन्हें डेली प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज इट्स. यस यस यस, फ्रॉम योर कन्वर्सेशन आई कैन अंडरस्टैंड कि एक प्रोफेशनल को कंसल्ट करना कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है पेरेंट्स के लिए. एंड द काइंड ऑफ थिंग यू हैव शेयर्ड कि फर्स्ट अवेयरनेस शुड बी देयर. देयर आर लॉट ऑफ मेनी टेक्निक्स. यस यस यस, प्लीज कंटिन्यू. सो द काइंड ऑफ अवेयरनेस शुड बी देयर कि एक अपनी प्रॉब्लम के बारे में जब तक अवेयरनेस से नहीं होगी. ज्यादा हम इम्पेशेंट होते. यस प्लीज. यस यस यस. या सो तो यू आर सेइंग अबाउट दैट अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है एक चीज की. एंड द सेकेंड इज कि आपको प्रोफेशनल. acceptance हो, या seek professional experts help, because self diagnose करके self healing मत start कर देना. Do it under the guidance of some experts and practice grounding techniques, because ये बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प करेगी काम रहने में, आपके इमोशनल रेगुलेट करने में. एंड बी पेशेंट, बिकॉज आई थिंक एवरीथिंग रिक्वायर्ड. जैसे हम प्लांट को भी अगर हम सीड डालते, इट टेक्स टाइम, स्प्राउट होने में, प्लांट आने में. द सेम थिंग हैपेंस विद आवर बॉडी आल्सो. So be patient, take baby steps. Don't, try to change yourself in one day. It's a process, it's not just एक चुटकी बजाया और हो गया. It's not like that. नॉट गोइंग टू बी, बिकॉज जब आपने इतना टाइम से इतना सब कुछ कैरी करके रखा है तो उसको, अब जैसे मैं कंप्यूटर की बात करूँ, कंप्यूटर को भी अपडेट होने में टाइम लगता है. आप उसको Time that. या तो 4 घंटे 5 घंटे के लिए जब तक छोड़ेंगे नहीं, वो अपने आप अपना प्रोसेस पूरा करेगा नहीं. द सेम वे इट हैपेंस विद द ह्यूमन लाइफ ऑल्सो. आपने मतलब इतने टाइम का बैगेज और ये सब चीजें कैरी वो किया होगा Very good. कि स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे स्टेप्स लेके वी कैन गो फॉर दिस एंड वी कैन हील ऑल्सो आवर, एंड देन वी कैन स्टार्ट विद द फ्रेश. चाहे वो रिलेशनशिप Fresh. हो, चाहे वो पेरेंटिंग हो, चाहे आपकी जॉब का हो, कुछ भी हो, बट यू कैन हील इट फ्रॉम देयर इटसेल्फ. सो वेरी It's ब्यूटीफुली यू हैव गिवन ऑल द टिप्स कि कैसे 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 लोगों को हम ये कर सकते हैं. अब अगर इस कंटिन्यूशन में ये कहूँ कि आपने किस टाइप से लोगों को हेल्प किया है, इट कैन बी अ पर्सनल एक्सपीरियंस ऑल्सो और एनी केसेस इफ यू वांट टू शेयर इट आउट, कि किस टाइप से आपने इन चीजों से हेल्प करके लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया. Yeah. So there was one case with a parent, Jyoti, and she was very possessive about her child, her daughter, because उन्होंने अपने बचपन में she had the trauma, या बहुत ही ज्यादा बुली किया था उनको स्कूल में. तो क्या होता था, she was very मतलब उनका वेट था, तो लोग उससे जैसे मोटी मोटी कह के बोलते थे. एंड पीपल यूज टू शेम हर, बहुत ही ज्यादा बुली, गलत बोलते थे उसके लिए. तो शी हैज होल्ड दैट. एंड नो, आगे जाके उन्होंने वेट शट डाउन कर लिया था एंड शी वाज फाइन. बट वो जो बचपन का ट्रॉमा है ना, दैट स्कूल में ऐसे होता है, स्कूल में बच्चे ऐसे बुली करते हैं. तो जब अब उसके बच्चे, शी वाज इनटू आई थिंक क्लास 6 or 7, शी वाज फाइन, नॉट दैट ओबीस बट ऐसे चब्बी चब्बी नाइस क्यूट डॉटर. तो शी वाज वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट हर डॉटर, दैट इसको तो वापस वो नहीं सहना पड़ेगा जो मैंने सहा है. And then she came to me for the discussion that how do I protect my child. And then I realized it's not your child, almost वो safe है, जहाँ पे भी है she is fine. Only thing is पहले आप अपना पुराना जो भी है ना, just come out of that, वो शेड करना. आई टॉट ग्राउंडिंग टेक्निक्स एंड ऑल. एंड आफ्टर दैट हमने बच्चों के बारे में, एज शी वाज कंसर्न अबाउट हर डॉटर, so I have given her some steps, आप बच्चे को कैसे अवेयर कर सकते हो. if somebody bullies you, what action she has to take. she had to inform her teacher, because हमारे टाइम पे हम इतना वॉइस आउट नहीं कर पाते थे. but now in school we have different different departments,
एंटी बुलिंग के भी हैं, काफी सारी चीजें हैं। तो आई थिंक वहां से हम बच्चों को रादर देन वो उस लूप में जाना कि माय चाइल्ड शुड नॉट सफर व्हाट आई हैव सफर्ड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बच्चों को उसके लिए तैयार करें। अगर ये सिचुएशन आती है तो व्हाट द चाइल्ड हैज टू डू। तो डेली उसके साथ डिस्कशन करना, बच्चे के साथ कनेक्शन बनाना। आप अपना भी शेयर कर सकते हो दैट यस मुझे ऐसा किया गया, बट तब मुझ में अवेयरनेस नहीं थी दैट आई हैव टू शेयर इट विथ माय पेरेंट्स, एवरीथिंग वाज इनसाइड मी। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट देन शी रियलाइज दैट यस, अदरवाइज उसका वो जो बचपन वाला था पेरेंट का, शी वाज जस्ट होल्डिंग दैट एंड इट वाज लाइक सच ए ह्यूज बर्डन फॉर हर कि लाइक एटलीस्ट व्हाट आई हैव गॉन थ्रू आई डोंट वांट माय डॉटर टू गो थ्रू इट। तो यहाँ पे हीलिंग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पेरेंट्स शुड हैव अ स्पेस, सेफ स्पेस टू वेंट आउट द फीलिंग, बिकॉज आजकल बहुत ज्यादा मे बी, एंड शी ऑल्सो सेड दैट उसने अपने स्पाउस के साथ भी डिस्कस की थी, बट स्पाउस इग्नोर कर देते हैं, अरे वो तो पहले की बात है, ऐसा कुछ नहीं होता आजकल बट दैट जो उसका जो पेन था, दैट शी नो दैट हाउ मच शी हैड बीन बुलीड, शी यूज्ड टू से आई यूज्ड टू क्राई, घर जाके बाथरूम में मैं रोती थी बिकॉज आई कुड नॉट टेल इट टू माय पेरेंट्स ऑल्सो। तो देयर सो मच, सो मेनी थिंग्स हम होल्ड ऑन करके रख सकते हैं, हमें पता नहीं इनडायरेक्टली हम बच्चों पे बहुत ही ज्यादा होवर करने लग जाते हैं, एवरी टाइम वी आर बिहाइंड देम हेलीकॉप्टरिंग कि ये तो नहीं कर रहा, कुछ गलत तो नहीं हो जाए, एक्सीडेंट नहीं हो जाए। सो देयर फ्यू लॉट ऑफ मेनी केसेस, अब अगर हम इनको डॉट करें तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू वरी, लेट्स लुक फॉर द सॉल्यूशन हाउ वी कैन प्रिपेयर आवर चाइल्ड फॉर दिस वर्ल्ड। बिकॉज दुनिया में हर तरह के लोग हैं, हर तरह की सिचुएशन है, वी कैन नॉट बी ऑल द टाइम बीइंग प्रोटेक्टिंग आवर किड्स। तो लेट्स प्रिपेयर देम फॉर द वर्ल्ड कि अगर आपको कोई गलत बोल रहा है तो आपको कैसे उसको अपने आप को, या तो आप जाके टीचर से कंप्लेन करें या कम होम एंड लेट अस आल्सो नो दैट somebody has told you anything wrong. So that's how we take steps. So it is very important that we heal ourselves. Similarly, एक grief का केस आया था मेरे पास, the parent was so much into grief she lost her father and then she didn't feel like पेरेंटिंग में भी उसका मन नहीं लग रहा था, दो बच्चे थे, शी यूज्ड टू फील वेरी डिस्कनेक्टेड हस्बैंड के साथ भी। and काफी बार उन्होंने स्पाउस से बात करने की कोशिश की, बट देन द हस्बैंड यूज्ड टू से कि सबका ऐसे होता है, शी वाज वेरी मच अटैच्ड टू हर फादर। तो द ओनली थिंग इज शी वाज लुकिंग फॉर सम स्पेस जहाँ पे वो शी हैड क्राइड सो मच, वो वेंट आउट हो गया एंड देन शी वाज रिलैक्स, इट वाज जस्ट डिग्ड इनसाइड हर। तो कई बार इट्स नॉट ओनली ट्रॉमा बट पेरेंट्स आल्सो लुक फॉर द सेफ स्पेस। कुछ हीलिंग की भी जरूरत नहीं थी, शी जस्ट वांटेड टू पोर इट आउट एंड देन शी वाज फीलिंग सो मच लाइट। आई थिंक शायद 2 सिटिंग ही ली थी उन्होंने, ज्यादा ली भी नहीं थी। तो इट इज सो इम्पोर्टेंट दैट ये जो ग्रीफ है, जो भी है, हम ट्रॉमास कैरी कर रहे हैं, कोई बस आई थिंक हमारे वर्ल्ड में सिर्फ वो एक सुनने वाला भी मिल जाए ना, आधी लोगों की तो आधे से ज्यादा प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी, वो भी नॉन Absolutely. जजमेंटली। बट द Abs- प्रॉब्लम इज वी आर सो रेडी एंड क्विक टू जज पीपल दैट पीपल को वो ज्यादा अच्छा लगता है कि हम अपने अंदर ही रखें rather than talking about it. Absolutely, absolutely. This has given a great insight also. और जैसे आपने 2 केसेस के बारे में बात करी कि एक तो पेरेंट्स कभी कभार इतने ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, अब वो उनकी भी Yeah. गलती नहीं होती क्योंकि उन्होंने अपने टाइम पे इतना कुछ देख लिया होता है, देन दे थिंक कि देखा हमारे होता बच्चे के है। साथ ना हो। और उस टाइम पे इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी। मतलब अगर मैं करेक्ट। बात करूँ तो जैसा बोल दिया घर पे, अगर डॉटर इन लॉ को ये करना है तो उनको वही करना है, अपने बच्चों को ऐसे करना। करवाओ, तो वो उनके पास वे आउट ही नहीं था कोई उस चीज का। या एंड मोस्ट ऑफ द टाइम द स्पाउस ऑफ द उनके जो थे वो अपने काम में इतने बिजी रहते थे, उनको ये नहीं पता होता था घर पे हो क्या रहा। अब वो हाँ, दे डोंट नो द फैमिली सीवियरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ना कि हाँ कि इतना उसको डिस्टर्बिंग, उनको लगता है कि ठीक है जनरल है, सबके साथ होता है राइट। कुछ अलग सा नहीं हुआ, बट मे बी वो इमोशनली बहुत ज्यादा अटैच थी। तो बहुत ज्यादा जरूरी है दैट हम थोड़ा सा एम्पैथिकली भी समझे लोगों को। एब्सोल्यूट। एंड दिस हैज गिवन द ग्रेट मैसेज ऑल्सो कि हमें लोगों के साथ सिंपैथी तो आप रखो, लेकिन उससे ज्यादा ये है कि एम्पैथी की तरफ भी जाओ, सो दैट एब्सोल्युटली। just have the ears to listen them and लिसन। most of the things will be sorted out, most of the things। मतलब अगर आप एक listening ears without any prejudice, without any judgment, एक किसी की प्रॉब्लम सुन भी लोगे, चाहे आप सोल्यूशन भी मत दीजिए, बट आप सुन भी लेंगे ना, सुन वो भी इंसान लेंगे। अपने आप ही रिलैक्स हो जाएगा इमोशनली, और उसका बैगेज वहीं क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा। So very beautifully you have helped these people, मतलब hats off to you that you have taken such sessions and इतना sensitive तरीके से आपने इनको handle किया है। तो थैंक यू मच। my pleasure। And as we have come थोड़ा end की तरफ से,
आप मुझे ये बताइए कि कोई आपके तरफ से 3 टेकअवेज फॉर द पेरेंट्स एंड फॉर द सोसाइटी कि कैसे इन चीजों के लिए हेल्प की जा सकती है कि आप सेल्फ हीलिंग की अवेयरनेस को स्प्रेड करो। Yeah. So first of all, I would like to share and request all the parents that it's okay not to be okay. It's okay not to be okay, and let your child also know that. Like आपको हमेशा एक वो benchmark आपको ऐसे नहीं set करना that हाँ we are perfect या we are एकदम no. It's okay. Let your child also see your ups and downs. Every time it is not always good days. Some days are hard. But hard day doesn't mean that the life is bad. It's just a phase. हर एक phase होता है and वो निकल जाता है. So बहुत ज्यादा जरूरी है पेरेंट्स अपनी जर्नी, अपने जो चीजें हैं लाइफ में आप बच्चों के साथ शेयर कर कीजिए, ताकि दे ऑल्सो लर्न, दे ऑल्सो अंडरस्टैंड एंड दे ऑल्सो नो कि यस इट्स ओके। अगर लाइफ में कुछ नहीं वर्कआउट कर रहा, वी हैव टू कनेक्ट टू आवर पेरेंट्स। वो एक ओपन स्पेस, नॉन जजमेंटल स्पेस हमेशा अपने बच्चों के लिए अवेलेबल रखना। This is what I tell my son, whenever you feel like, something is bothering you, troubling you, me and papa are always there, कभी भी कुछ भी लगे, come here, discuss। अगर आपने कोई गलती भी की है ना, तो भी आके हमें बताना, तो एटलीस्ट उसको ये पता होता है, वो आज अगर कुछ मिस्टेक भी हो जाएगा ना, वो एक्सेप्ट कर लेगा कि यस आई हैव डन दिस रॉन्ग। सो दो आई करेक्ट हिम लेटर ऑन, नॉट इमीडिएटली, बट उसको पता है कि हाँ ये तो है नहीं कि मार पड़ने वाली है, तो एटलीस्ट वो एक्सेप्ट कर लेता है कि यस आई हैव डन दिस रॉन्ग, एंड मे बी आफ्टर हाफ एन आवर और 1 आवर में उसे घुमा घुमा के अपने तरीके से समझाती हूँ। बट एटलीस्ट लेट योर चाइल्ड कम टू यू कि हाँ आज ये हुआ। वी ऑल ऑफ देम आर सो बिजी इन आवर ओन वर्ल्ड दैट हमें टाइम ही नहीं है डिस्कशन के लिए। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी थोड़ा बहुत टाइम आप आधा 1 घंटा अपने फुल एंटायर फैमिली के साथ हो, बी टुगेदर। वी ऑल आर इनटू दिस डिजिटल वर्ल्ड, बट ये जो ह्यूमन टच है ना, आई थिंक बच्चे बहुत ज्यादा मिस कर रहे, स्पेशली ये जनरेशन वाले। So just be available to your kids, have open discussions, and as your child grows up, एज अकॉर्डिंगली उन्हें अवेयरनेस प्रोवाइड कीजिए, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी है या बुलिंग के रिलेटेड है, या काफी सारे आजकल हम देख रहे हैं सुसाइड केस इतने इंक्रीज हो रहे हैं बच्चों के, बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, देयर सो मच ऑफ प्रेशर। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस। बच्चों को अगर हम बाहर भेज रहे हैं तो उससे पहले हम उन्हें तैयार करें टू फॉर द वर्ल्ड, बिकॉज दे हैव बीन लिविंग इन द कुकून, आराम से वो एकदम सेफ एनवायरनमेंट में है। So if they are stepping out, then let's prepare them, let's show them the reality. And it's okay। आप इतने पहले से मत बोलोगे हाँ डॉक्टर बन के आना है। तो अगर अगर वो एक एग्जाम में भी फेल हो गया, वो वहीं पे गिव अप कर देगा कि नहीं मेरे पापा ने कहा था डॉक्टर बन के आना। इट्स ओके, लेट्स गिव यू 100%, एंड रिजल्ट उनको बोल दो कि लेट्स सी व्हाट एवर द रिजल्ट इज, गिव यू 100%। तो ये सब छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड नेक्स्ट थिंग इज प्रैक्टिस सेल्फ केयर, इम्पोर्टेंट थिंग, बिकॉज जब आप खुद हेल्दी, काम, हैप्पी रहेंगे, तभी एक आप अच्छा घर, अच्छी फैमिली, अच्छे बच्चों को आप रेज कर पाओगे। बिकॉज आई फील एनर्जी मैटर्स अ लॉट। चाहे वो आप कुकिंग कर रहे हो, अगर आप खाना भी बना रहे हो और स्ट्रेस में हो ना, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप अपना स्ट्रेस उसे वेंट आउट कीजिए, उसे लर्न अबाउट द ग्राउंडिंग टेक्निक एंड बी इन द मोमेंट। वी आर सो मच प्लानिंग अबाउट द फ्यूचर दैट हम आज का प्रेजेंट ही जीना भूल जाते हैं। So it is very important that be in the moment. सो ट्रू, सो ट्रू। एक तो आपने ये बोला कि इट्स ओके नॉट टू बी ओके, मींस इट्स Okay, yeah. रियली ग्रेट एग्जांपल, द रियली ग्रेट कोट यू हैव गिवन कि लाइफ में चैलेंजेस अप एंड डाउन आते हैं, हम लोगों ने भी अपने टाइम में देखे हैं, हमारे पेरेंट्स ने भी देखे हैं। बट Yeah, बच्चों को उस चीज के लिए प्रिपेयर करने के लिए यू नीड टू बी वेरी काम एंड यू नीड टू गिव दैट अवेयरनेस कि हाँ ये चीजें होती हैं, आगे भी होंगी, होती शायद है इससे लाइफ ज्यादा भी में। होंगी। बट आपको जो है Yeah, किस टाइप से उसको हैंडल करना है इज अबाउट ऑन यू ओनली, बिकॉज मम्मी पापा टीचर्स दे कांट बी एवरीवेयर विद यू। everywhere. तो वो चीज के लिए एक तो खुद के लिए अवेयरनेस रखना, फिर उन बच्चों को वो चीज की अवेयरनेस देना। द काइंड ऑफ केसेस वी आर सीइंग अभी, जैसे आपने सुसाइडल की भी बात करी और कुछ ऐसे केसेस जो चल रहे हैं, दीज आर द सेंसिटिव इश्यूज। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे Yeah, उतनी अवेयरनेस ही नहीं होती है, और कोई नहीं चाहता वो कि हाँ हम अपनी लाइफ के साथ ऐसा कर दें कि हमारे पीछे हमारे पेरेंट्स के साथ इतना इतना ये सब कुछ हो जाए कि दोस्त हैव गिवन अस इतना अफेक्शन दिया, इतनी मेहनत करके हम यहाँ तक लेकर आए कि हम उनको ये चीज दे के जाए। बट correct. वहां उस मोमेंट पे वो अवेयरनेस या कह लीजिए या उस चीज की स्ट्रेंथ कह लीजिए कि उस चैलेंज से फेस करने की स्ट्रेंथ ही नहीं थी।
So for that, a message for everyone, means for either a boy or a girl, everyone, the message is कि boys को तो awareness भी दीजिए, girls को भी awareness Right. दीजिए, और उनको एक self protection, अपनी boundaries कैसे set करके रखनी है, Set वो करें। चीज का भी एक awareness देना बहुत जरूरी है, जो फाउंडेशन स्टेज से ही शुरू हो जाती है। हमारे यहाँ इंडिया में तो बहुत सारी चीजों की बात ही नहीं की जाती है अभी, मतलब पेरेंट्स हो Absolutely, and जाए it's या really disheartening. We parents, पहली चीज हमें ही नहीं पता हम उन टॉपिक्स पे कैसे बच्चों से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करें। तो आई थिंक मेन लर्निंग हमसे ही शुरू होगी, पहले हमें सीखना पड़ेगा सो दैट वी कैन टॉक विद आवर किड्स। बिकॉज राइट काफी चीजें अगर हमारे टाइम पे देखे तो वी हैव सीन, इतना हमें पता ही नहीं था। जब बड़े हुए तब पता लगा अच्छा ये चीजें भी होती है। एंड राइट आजकल के छोटे छोटे बच्चे खुद एक्सपर्ट है, दे आर जस्ट सेल्फ लर्निंग, एंड वो कहीं ना कहीं उनके ब्रेन में रॉन्ग वायरिंग कर रही है आई गेस। It राइट is very important that we should clear the concept. For example, I'll just share quickly. I'll just take two श्योर श्योर minutes. प्लीज प्लीज। बच्चों को बहुत ज्यादा ये हो गया कि we all want to be into content creator और quick money में। तो ओके आजकल सब बच्चों का यही हो गया, लॉट ऑफ एड्स आर कमिंग, यूट्यूबर इतना कमा रहा है, या वी आर डूइंग 10x और 20x। तो आजकल बच्चों का माइंड कहाँ हो गया कि वाई टू स्टडी, कौन पढ़ेगा इतना, let's get into the quick money. I want to be content creator. I was really amazed when I connect with students in schools. तो काफी बच्चों को ये कि I'm in 6th standard and I want to be a content creator. ओ I said बेटा आप अभी 6th में हो, why don't you focus on your boards? तो राइट कह रहे बोर्ड तो निकल जाएगा बट मुझे ये ना कंटेंट क्रिएटर करना है। देन आई आस्क क्यों करना है, बोले उसमें आजकल बहुत ज्यादा पैसा है। So can you imagine a sixth standard student, getting into content creation, and also there's so much of, this, अगर हम कहें तो बहुत ज्यादा fog है बच्चों के माइंड में, कि ये हो जाएगा quick money, but the reality is totally different. So I think ये भी बहुत ज्यादा मिसगाइड कर रहे हैं आजकल बच्चों को, to get into a quick money. So बहुत important है that हम बच्चों को एटलीस्ट समझाएं। लॉट ऑफ पेरेंट्स को तो पता भी नहीं है that उनका बच्चा कंटेंट क्रिएटर के लिए सोच रहा है। इट इज दैट दे एंड डिस्कसिंग विद देयर फ्रेंड्स कि राइट हाँ हम ये करेंगे। तो यहाँ से अवेयरनेस स्टार्ट होती है। टॉक टू योर किड्स, गाइड देम। आप एकदम से ये मत बोलो कि नहीं ये नहीं करना, बट यस ओके इफ यू वांट टू डू इट, पहले लेट्स 10th 12th एंड लेट्स हैव ग्रेजुएशन। तब तक क्या पता ट्रेंड ही चेंज हो जाए। देयर वोंट बी एन एआई के टाइम पे नो नीड ऑफ कंटेंट क्रिएशन, देयर सो मच ऑफ राइट चेंज। तो राइट बहुत जरूरी है कि हम बच्चों को समझाएं व्हाट इज गोइंग ऑन, बिकॉज रील और रियलिटी में डिफरेंस लाना ना बहुत डिफिकल्ट है, स्पेशली विद दिस जनरेशन। दे सी सो मेनी फ्लैशी थिंग्स एंड दे फॉल फॉर दैट। So सो be aware, parents, talk to your child, discuss, talk as much as you can, give them space, let them share it with you and guide them, be the guiding force in their life. एब्सोल्युटली एंड इन कंटिन्यूएशन ऑफ दिस ओनली आई वुड से कि ये सारी चीजें तभी आप लोग कर पाएंगे जब आप लोग खुद प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे, अपना पास्ट ट्रॉमा और वो Absolutely. सब चीजों को जितना मतलब कर सको उसको हील कर करके, सो दैट यू शुड नो वेयर योर चाइल्ड इज गोइंग, व्हाट ही इज डूइंग, व्हाट शी इज डूइंग, एंड क्या आगे उनकी लाइफ में स्टेजेस आने वाले हैं। तो आप खुद उस चीज में रहेंगे, प्रेजेंट स्टेज में रहेंगे, तभी आप आगे जाके अपने बच्चों को वैसा फ्यूचर दे पाएंगे जो आप एक्सपेक्ट भी करते हैं। So this was a great, lovely talk with you, Jyoti Singh ji. Thank you so much Thank you so again much, Preeti. for Thank you so so much. It was many. really wonderful, connecting with you and sharing all these topics, because I think लोग जल्दी से बात नहीं करना चाहते. But yes, there is so much, you enjoy your life once you heal yourself. So just work on it, don't be afraid, just speak out, seek help, and, see the transformation, see the magic. Right. So healing will lead to a transformation. The whole crux I can give on this talk show is healing will lead to a transformation, and that will give the Transformation. parents, child also a great future. So thank you so much, viewers, for watching this episode. And I'll be sharing this video on YouTube with ma'am का link. इनका link मैं हर जगह पे flash out कर दूंगी. So if you have any kind of a query for healing, then you can directly contact her. She will be glad to help you out. Thank you so much, Jyoti, once again for coming. And Thank you so much.